युद्धवीर सिंह जिंदाबाद, युद्धवीर सिंह। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य के यंगेस्ट सीएम युद्धवीर सिंह अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए निकल चुके हैं। काफिला उन्हें फॉलो कर रहा है। युद्धवीर! Hello and welcome. You're watching the Shosha podcast. My name is Shweta Rashmi and I have with me today team Shosha, Abhijit Bhatt and Soumya Sharma joining in. Today we're going to be talking about Dark 7 White, which is now streaming on ZEE5 and All Balaji. थोड़ा सा अगर इसके बारे में, if I have to tell you a little about Dark 7 White, it's basically about, it's actually based on a novel called Dark White by this author called Shweta Brijpuria. And it's basically talking about student politics, which is sort of based in a span of 10 years, how we see things change in the life of these primary characters, 7-8 characters. So yeah, I think that's pretty much what it's all about. It's set in Rajasthan, if I'm not mistaken. And yeah, so that is pretty much the plot of Dark 7 White. It stars Sumit Vyas, Nidhi Singh and Jatin Sarna in main roles. Apart from this, of course, we have a lot of other actors and actors playing on different characters. But to talk about Dark 7 White, let's first go to Abhijit because he is really excited to talk about this show. So Abhijit, what are your first thoughts about Dark 7 White? देखिए, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ. ओके, लेट्स सी इफ इट मेक्स सेंस. ओके, इमेजिन करिए कि आप एक वेडिंग में गए हैं. ओके, एंड आप उस वेडिंग में जाने के लिए बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे थे और अचानक से आपको उस वेडिंग में एक ऐसा रिश्तेदार मिल जाए जो आपका दिमाग खाने पे तुला हुआ है. तो क्या वो वेडिंग आपके लिए अच्छी याद बन के रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि अब उस रिश्तेदार ने आपका दिमाग कर दिया है खराब. मैं इसलिए आपको एनालॉजी दे रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अभी एक बहुत उस वेडिंग की तरह हो रखे हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शोज हैं. अचानक से एक रिश्तेदार रूपी शो आता है कॉल्ड डार्क 7 वाइट और आपके दिमाग से कुछ खिलवाड़ करके चला जाता है. तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन जो था वो काफी अच्छा था बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन स्टूडेंट पॉलिटिक्स. इसकी स्टोरी काफी ग्रिटी हो सकती थी, इसकी जो कहानी है वो काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी. बट देन फर्स्ट इंप्रेशंस आर्ट ऑलवेज द बेस्ट इंप्रेशंस. सो उसके बारे में तो खैर बाद में बात करेंगे, पर फर्स्ट इंप्रेशन की, अगर आप स्ट्रिक्टली फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा सा प्रॉमिसिंग था इस शो को लेकर के. Okay, yeah, that's fair. Soumya, what was your first impression? So जैसे प्लॉट वही मुझे भी, मैंने थोड़ा सा देखा कि इट वुड कंपेयर पॉलिटिक्स एंड रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो मुझे लगा कि इट वुड हैव नाइस कैरेक्टर्स, अच्छा कुछ डार्क सीक्रेट्स एंड इट वुड बी इंटरेस्टिंग और थोड़ा रहेगा, मतलब ऐसा इमर्सिव सा होगा. बट it was not at all immersive and बिल्कुल भी it was not captivating and I am simply not impressed. मुझे लगा था it would be something like जिसमें अच्छे अच्छे politicians को लोगों से compare करेंगे. I mean something like जैसे this is novel Shashi Tharoor की great Indian novel in which he has compared characters of Mahabharata to political figures. I thought something like that कुछ अच्छा होगा, but I'm just not impressed with it and we're going to get to that. Abhi, let's just get into it. Yes. Okay. So I kind of disagree. I kind of disagree a little with Soumya. I think the show is very immersive. क्योंकि ये शो देखने के बाद you will feel like immersing yourself in water and dying. So ये शो काफी immersive. My bad, Abhijit. Abhijit has gone quite literal. But moving on, I think first impression for me at least was when I started watching the show. मुझे promising laga. I actually do agree with Abhijit here. I didn't find it interesting. There were a couple of things which I read online and I thought, maybe this could be an interesting show. But then I think gradually I just lost all my interest. So by the end of it, I was just out of patience and I was like, why am I watching this? But I watched it so that I think we all three of us watched it so that everybody watching this review probably has to or not has to watch it. That we're gonna get to towards the end. Let's keep it for the end. But let's talk about the plot, guys. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, it's about student politics, जो इनकी 10 साल की पूरी जर्नी को दिखाता है. और Sumit Vyas, Nidhi and Jatin are primarily in the main as like the main characters. So as far as the plot is concerned, the first episode itself just starts with
sort of showing us what actually happens, जो कि मतलब end में क्या होता है पहले हमें वो दिखाया जाता है कि मतलब किस एक पूरी घटना के ऊपर ये कहानी निर्धारित है, and then we go back and forth and you know all of that. But हाँ, जैसा कि I think हमने ट्रेलर में भी देखा है, it just starts with Sumit Vyas, who's now the chief minister, and he's going on a rally, and actually he's going for taking his oath ceremony, I think, and while he is on the way he gets killed. Now it's basically कि किसने मारा है, क्यों मारा है, क्या है, पूरी सीरीज में हमें इन्हीं सवालों का जवाब मिलता है. So this is pretty much what the plot is all about. Let's start with you actually, Soumya. What do you think? What do you think about the plot? It was so the whole show is about who kills someone, you know. It's a murder mystery at its center. But it was just I don't know, I mean, the show didn't make sense at all. Not at all. There were so many random things and random twists. So also the plot, the show has been made in the form of I mean, they've made comparisons, and the show titles are also like that. They've compared them with sexual orientations, which were, I don't know why did they have to do it. It was totally unnecessary. So I'm going to read out a few episode names for you guys. Sapna or Sex, Friendship or French Kiss, Izzat or Hard On. And they've compared these things, and without any logic, it's just illogical. I don't know why did they have to do that. So they have made the plot like that and inserted these sexual orientations in it just for the sake of the title, and it was illogical to see that. And plot bhi bahut aisa hi tha. I mean, there were random people who just who would step in, and जिन्हें पहले का ही नहीं देखा, and they would एकदम से बहुत important role हो जाएगा उनका. There were so many random things that didn't make sense at all. So the plot at the in the first episode लगा कि okay, it would be a nice murder mystery, but as it started, it was just not, it was plain illogical. Abhijit, were you ever satisfied, or did you sort of buy into the plot? Did it captivate you? Did it immerse you at any point? इसका प्लॉट यार एक मिक्स वेज सब्जी की तरह, जिसमें आपको किसी सब्जी का कोई फ्लेवर नहीं आएगा. वैरायटी बहुत है, पनीर है, शिमला मिर्च है, गाजर, गोभी, मटर सब है, पर ना ऐसा है कि जब उसको खाओगे ना तो आपको लगेगा आप भूसा खा रहे हो. उसमें किसी का टेस्ट नहीं आने वाला है. आई एम रियली सॉरी. आई नो शो चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, उसमें बहुत एफर्ट लगता है, पर कल 2:30 बजे तक मैंने बिंज वॉच किया इस शो को, ठीक है, क्योंकि आज हमें रिव्यू करना था. एंड आई वाज होपिंग कि अब प्लॉट इंटरेस्टिंग होगा, तब प्लॉट इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन नहीं. इसमें सुमित व्यास, एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद सुमित व्यास. यार सुमित व्यास के जो दादाजी थे वो इतना अच्छे माइथोलॉजिकल शोज करते थे, वेद व्यास, और उनका ये पोता क्या कर रहा है, ठीक है. ये मतलब मुझे शर्म आ रही है कि ऐसे शो क्यों कर रहे हैं. आई नो ही हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, और मुझे पता है कमेंट सेक्शन में हो सकता है कई लोग ऑफेंड हो जाएं, पर आई हैड सच हाई होप्स. इसका प्लॉट इज पेपर थिन, ठीक है. इसके प्लॉट में कुछ नहीं है. इसका प्लॉट ऐसा लगता है जैसे कोई स्टूडेंट कॉलेज फिल्म थी या कोई यूट्यूब वीडियो था जो कि एक्सटेंड होते होते 240 मिनट का बन गया. इसमें यही है और कुछ नहीं है. सो आई वाज होपिंग कि प्लॉट कैप्टिवेटिंग होगा, क्योंकि इसका प्रेमाइस अच्छा था. The premise had a lot of promise, but at no point, like not from the starting till the beginning, I was ever convinced कि ये show deliver कर पाएगा अपनी premise पे. So I think we all have sort of talked about all the things, about all things about the plot basically, and I think all of us are more or less on the same page. But now let's talk a little about what works for us in the show. If there was anything at all that you felt, इस particular कारण की वजह से I would watch the show. I know it's a little difficult for all of us, but I'm going to give you some time because I'm going to just go first and talk about one thing which I think worked for me at least, which was the fact कि, so I think it's a psychological thing also. When you start any episode, any series, जब मैं देखती हूँ कि किसी episode का duration कितना होता है ना, तो अगर मैं देखती हूँ इट्स लाइक टू लॉन्ग, तो मुझे ऑलरेडी आलस आने लगता है. हम लाइक अरे यार 1 घंटे का एपिसोड है. दिस वाज सरप्राइजिंगली, आई मीन नॉट सरप्राइजिंगली, दिस वाज एक्चुअली अ गुड पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 18 से 20 मिनट के बीच के एपिसोड थे. सो दैट एक्चुअली मेड मी फील रियली गुड. So I was like, thank God, okay, like only 20 minutes episode. So I was very happy doing that. I don't know if it's a good thing or not, but I think the fact that the episodes were short, I think that is probably one point that would work for me. But let's talk to Soumya.
and understand if there is anything at all that works for her. Well, can we just talk about what didn't work on the show, because there's plenty there. We will get to that. And, we will get to that. But let's talk about what works first. Shweta, I'll be very honest. All throughout watching the show, I really tried very hard to find that one thing that I can talk about, that works for the show. But unfortunately, just at this one point, जब छाप तिलक का एक rendition play होता है, that was the only point. I was like, oh, चलो ये गाना है अच्छा. That was the only thing that I enjoyed, बाकी तो मतलब honestly just मतलब not the music, कुछ set design, nothing. I mean कुछ there was nothing in focus that I could be attracted to for the show. कुछ भी था नहीं उसमें. I'm really sorry, but yeah, that's that. I don't have any words for this. Sorry. Okay, I don't think you have to be sorry. This is like a very honest review that we're putting out for everybody who's watching. Abhijit, क्या कहेंगे आप? Did anything work for you in the show? देखिए, शो की स्टोरी लाइन एक तरफ, प्लॉट पॉइंट एक तरफ, बट इस शो का जो एंटी स्मोकिंग कैंपेन है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी स्मोकिंग कैंपेन है. मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट. इस शो में होता क्या है कि सुमित व्यास इज प्लेइंग दिस यंग पॉलिटिशियन जो कि एम्पावर्ड है और बड़ा ही कूल है. अब उसके कूल का क्या होता है, कैसे कूल है वो इसलिए कूल है क्योंकि वो गाड़ी के बोनेट पे बैठ के सब पूरी जनता के सामने सिगरेट पीना शुरू कर देता है. ठीक है, ये पहले एपिसोड में होता है. पहले एपिसोड पे 8 मिनट 40 सेकंड पे वो अपनी सिगरेट खत्म करता है और 9 मिनट 17 सेकंड पे उसकी मौत हो जाती है. तो गाइस, इससे पता चलता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज एक्चुअली इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है, तो इससे अच्छा Yes, yeah. This is amazing. This deserves an applause. तो इससे अच्छा एंटी स्मोकिंग कैंपेन किसी शो ने आज तक एम्प्लॉय नहीं किया है. आई थिंक हमारी आईएनबी मिनिस्ट्री बहुत खुश होगी कि हाँ, फाइनली कोई सीरियसली ले रहा है वैधानिक चेतावनी को कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. सो दैट इज द ओनली थिंग इन द शो दैट वर्क्स फॉर मी. दैट्स इट. Oh God. Okay. Okay, I think the next point is probably very easier for all of us to sort of dive into. What is it that does not work for you while watching the show? The factors, that points that came to your head. Abhijit is already laughing, so I'm guessing he has a lot of things to share with us. Abhijit, क्या है, मतलब क्या है ऐसा जो तुम्हें मतलब अच्छा नहीं लगा शो में? सच में बताओ यार, क्या ऐसी चीज है, क्या कमी रह गई? Where do I start, श्वेता? मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट लेट मी ट्राई. ओके, टू बिगिन विद, इस शो में जो लोग नहीं देखे हैं शो अभी तक, टू बिगिन विद, इस शो में 6 कंपोजर्स हैं. ठीक है, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, बट देयर आर 6 कंपोजर्स हु हैव कंपोज्ड सॉन्ग्स फॉर दिस एंटायर शो. अब मैं आपको एक छोटा सा सैंपल देता हूँ कि उन्होंने क्या कंपोज किया. ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पीछे बैकग्राउंड में बज रहा था और मुझे इतना वियर्ड लगा कि मैंने पॉज करके उसको दोबारा सुना और उसको टाइप किया कि 6 कंपोजर्स ने मिलकर ये बनाया. यस, हाँ, एग्जैक्टली. सो every time सुमित व्यास comes on screen, this is the song that the 6 composers made. Okay, सब है, सब मेरे पास है, सब पैसा भी, पावर भी, पैशन भी, सब पॉलिटिक्स का नौजवान मचाएगा ये तूफान, वॉच आउट, युद्धि हैज अराइव्ड. ये 6 कंपोजर्स ने मिलकर ये 6 लोगों ने मिलकर बनाया. इमेजिन, नॉट 1, नॉट 2, बट 6 people have written this song. ये सॉन्ग अगर आप किसी कॉलेज के इंटर्न को देते ना, इससे बेटर सॉन्ग लिख के देता. भाई एकता कपूर के पास इतने पैसे हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम है भाई. ये पी किट्स बांट दो ना लोगों में, ये शो बनाने के बजाय. कितना दुआ देते लोग आपको. आपने 6 कंपोजर्स बुला के क्यों ये बनाया ये गाना. ये ओके, दैट इज वन. ओके, दूसरा, उसके दादाजी. ओके, जो सुमित व्यास के दादाजी हैं वो सुमित व्यास से यंग लग रहे हैं. व्हाई वाज ही कास्ट एज दादाजी? एंड देन लास्ट में always have problem with age. हाँ, हमेशा ऐसे रहता है कि हाँ, ये हमेशा old है, ये कैसे है? But that is true. That is the problem. The problem is कि just because किसी चीज को scandalous बनाने के लिए लास्ट में दादाजी पापा निकलते हैं. अरे क्यों भाई, क्यों बनाना है उसको? एक नॉर्मल ट्रैक चलने दो, आपको जबरदस्ती उसको स्कैंडलस क्यों बनाना है? ओके, देन उसके बाद इसके इस फिल्म में ना, शो में, ये शो फिल्म जो भी आप बोलना चाहें, इसको यूट्यूब वीडियो भी कह सकते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस. पर इस शो में ऐसा लग रहा था कि एक्टर्स एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे. एक सीन है सेकंड एपिसोड में जहाँ पे जतिन सरना जाता है ऊपर छत में उसके एक दोस्त से बात करने के लिए. ठीक है,
एंड लिटरली अगर आप उस सीन को देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये दोनों आपस में ना ये अलग ही ट्रिप में है कोई, और एक दूसरी बात सुन ही नहीं रहे। जतिन सन्ना उसको पूछता है कि आजकल सब लोग फूक के बैठे हैं, वहां पे वो बोलता है आपको पता नहीं मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ। ये क्या है, ये क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है भाई। एंड देन जतिन सन्ना के उठपटांग से एनालॉजी वाले डायलॉग्स कि जैसे फिल्म का मजा सिनेमा हॉल में आता है वैसे पूछताछ का मजा पुलिस स्टेशन में आता है। एंड वो दोनों उसके चले जाते हैं, फिर ड्रोन शॉट आ जाता है। ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्यों है, यू नो। ये शो मतलब and so there are so many points. So apparently Sumit Vyas is basically playing someone from the royal family, okay? और ये उसके हॉस्टल के कमरे में पार्टी कर रहे हैं। भाई साहब वो कमरा ना ट्रायल रूम लग रहा था किसी दुकान का, वो वहां पे बैठ के सब पार्टी कर रहे हैं। मतलब इसका सेट डिजाइन इज हॉरिबल, इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट इज हॉरिबल, इसका नैरेटिव इतना हिला हुआ है। इसका नैरेटिव कहां से कहां जा रहा है। कोई कैरेक्टर हॉस्टल की बिल्डिंग से निकल के अचानक दूसरे सीन में जंगल में पहुंच गई। मतलब जतिन सन्ना ने एक सीन में पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी है, अगले सीन में ही वो बॉडीगार्ड पहन के टक्सीडो पहने में आ गए। भाई क्या हो रहा है ये एडिट, इसके एडिट में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। ये एडिट नहीं हुआ क्या ठीक से, या फिर ऐसा लग रहा है इन्होंने फर्स्ट कट पकड़ा दिया हमें कि भैया आप देख लो, अच्छा लगेगा तो फाइनल कट बनाएंगे इसका, पहले आप ये देख लो। तो ये शो ऐसा लगता है। Okay, that's just too much to process for me right now. सौम्या, क्या तुम भी इतनी भरी पड़ी हो? तुम्हारे पास भी इतने सारे I just love how hyper this show has got all of us. Seriously, I mean इतना hyper, I don't think मैं इतने लंबे टाइम में कभी हुई हूँ। I know, मतलब I mean okay, you are talking about narration जो तुमने बोला, मतलब the show has been narrated सुमित व्यास की वॉइस में, you know, वो कहीं गॉडली वॉइस कहीं से उसका चल रहा है मरने के बाद। एंड द डायलॉग्स आर लाइक, जैसे इसने अभी ने एक डायलॉग बताया, एक सीन में यूडीज मदर, आई मीन सुमित व्यास मदर इज अ सस्पेक्ट टू, तो एक डायलॉग है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, अरे माँ आप तो मांसाहारी निकली। व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्या है, क्यों है ये, मतलब आई मीन बहुत ज्यादा। एंड ऑल्सो जैसे ये जतिन सन्ना के भी स्टूपिड कमेंट्स, देन the sheer disregard to logic and sense in this entire show। कोई भी कुछ भी हो रहा है, मतलब I don't know, कुछ कॉन्वर्सेशन कहीं जा रही है, कैरेक्टर्स अजीब से हैं, मोटिव्स उनके मतलब समझ भी आ रहे हैं, बट लाइक क्यों, I don't know, जबरदस्ती के लोग लड़कियां 2-3 घुसाई हुई है कि मतलब क्योंकि इसमें पता नहीं सेक्सुअल ओरिएंटेशन था तो अच्छा ये भी लड़की इसके साथ ही, I don't know, just because you want to show like how Yudi is so cool and he just has this sexual relationship with all the women he's with. एंड वो स्टार्टिंग में इवन इतना इम्पैक्टफुल दिखाने की कोशिश करी, मुझे समझ नहीं आया था ये अपने आप को समझता क्या था पहले तो, क्यों यूडी ऐसा है, यूडी में अपना कंपैरिजन दूसरों से कर रहा है, हमें ही नहीं इम्प्रेस कर पा रहा है, पता नहीं क्या समझ रहा था वो अपने आप को। जॉन एफ एट वन पॉइंट वो जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन से अपने आप को कंपेयर करता है। आई हैव नो आइडिया क्यों, क्योंकि वो वही उन्होंने कॉपी किया, बहुत सस्ती कॉपी जॉन एफ कैनेडी की। मतलब वो ओपन जीप में, भाई साहब जॉन एफ कैनेडी कैडिलैक में था, भाई तू जीप में मारा है, ठीक है, वो भी मांझे से। And they have tried to compare it with John F. Kennedy का मौत यार, that was so sad। and पता नहीं क्यों वो पीछे उसकी पूरा रिक्रिएट करने की कोशिश करी उन्हें, वैसे ऑनराज चल रहा है, वो जीप में से खड़ा है ना, ओपन जीप में, तो मांझे से मारा है। एंड मतलब जस्ट कुछ सीन्स में मतलब उसको कूल दिखाने के लिए वो ऐसे गंदी सी वॉक करके विद दैट पैथेटिक पीस ऑफ म्यूजिक जो चलता था उसका यूडी वाला, उसमें चल के आ रहा है, और with all of these people following, I was like, why are you following him? क्यों, क्या, कौन है ये, मतलब didn't make any sense at all। प्लस एक सीन में मतलब the logic part that I spoke about, उसमें जैसे जतिन सन्ना एक जो किलर मतलब जैसे जिसको हायर किया होता है but who's not the killer actually, पता नहीं क्या क्या ऐसे प्लॉट ट्विस्ट थे। हाँ, ऑल्सो दिस वन डायलॉग कि फ्रेंडशिप और फ्रेंच किस में मजा तब तक नहीं आता जब तक ट्विस्ट ना हो, मतलब गंदा बी ग्रेड अजीब सा ही लग रहा था। मतलब वाई मतलब ऑल्ट बार जैसे क्यों शो बना रहा है। और मतलब उसके नाम पे क्या था कि जैसे जतिन सन्ना पुलिस यूनिफॉर्म पहन के बैठा है, वो कहता है तुम लोग को किसने भेजा है, अरे वो पुलिस वाला है, मतलब क्या, आई मीन आई जस्ट डोंट नो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सी चीजें पॉइंट आउट करूँ। बट द वन थिंग इज द whole needless dialogues और गंदे comparisons and the illogical plot and I don't know, let's just move on to you, I'll just keep speaking otherwise। एक तो अभिजीत has just ruined my entire day now, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ watch out UD has arrived चल रहा है। that song भाई, 6 composer
मेरे दिमाग में चल रहा है विजीत, वो तुम्हें नहीं चलना चाहिए था. I'm sorry. I have a very long day now and this is the only thing that I'm going to be thinking throughout. So yeah. Anyway, talking about things that did not work for me, like I said initially, मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद थी क्योंकि मुझे लगा कि maybe it will get better, it will get better. It had that thing that where it could get better. First thing, सुमित व्यास और निधि को हमने साथ में देखा है in Permanent Roommates, which was a hit, a super hit. और मुझे परमानेंट रूममेट्स बहुत ज्यादा पसंद आया था when I watched it. And दोनों का कैरेक्टर भी लोगों ने बहुत पसंद किया. And then seeing the two of them together, because of course वो एक हिट जोड़ी है, so we know कि भाई ये एक हिट जोड़ी से इनको साथ में लेकर के आएंगे, it could work. Surprisingly, I was never able to get out of that zone of the permanent roommate zone. मैं उनको साथ में देखती थी और मेरे दिमाग में नितेश और तान्या जो उनका कैरेक्टर था वही मेरे दिमाग में आता था, because I was like, yeah, I cannot buy the fact that these guys are actually Yudhvir and Daisy. So that somehow pulled me back from connecting to the show at times. Sumit Vyasku seeing in this very again, I think Permanent Roommates has sort of just ruined my image of them as actors, and मेरे दिमाग में I've sort of stereotyped him, which is not a good thing, but I have sort of stereotyped him where I do not see him very easily playing such characters, even though he is a good actor. But यहाँ पे there were times where I was not very convinced with the fact that he's playing Yudhvir. Jatin Sarna, of course, he was in Sacred Games and he was really good. I think performances, अगर acting वगैरह की बात करें तो people have still done well. पर अगर आपकी कहानी इतनी कमजोर हो, which cannot hold the ground, so I mean there's no point of it. मतलब the story is the base of the entire series or any project for that matter. और अगर आपका base ही कमजोर है तो obviously the building has to fall down. So that is something that I think जिसकी वजह से the story is one thing which I think did not work for me at all. It did not make any sense for me. Episodes भले ही मैंने कहा कि क्योंकि 20 minutes long थे, that is one thing which I liked about the thing, at least they were short. पर 10 एपिसोड थे यार, मतलब 10 एपिसोड की क्या जरूरत थी? इतना जो फालतू के बीच में कैरेक्टर ट्रैक्स घुसाए, ये बहुत कुछ चीजें डिड नॉट मेक सेंस, which I think Abhijit would also agree to, कि there were certain character tracks which were not making sense to me. So I thought that वो चीजें easily avoid करके इसको और छोटा और क्रिस्प बनाया जा सकता था, जिससे कि मे बी थोड़ा सा bearable हो जाता. And तो मैंने मेंशन किया अबाउट द वॉइस ओवर दैट सुमित व्यास अपने पूरे शो में ही टॉक्स अबाउट, बेसिकली ही इज नरेटिंग क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पीछे से बता रहे कि इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, तू ये कर, तू वो कर, एंड ऑल ऑफ दैट. वॉइस ओवर 2 लोगों के चल रहे होते हैं, एक सुमित व्यास का और एक जतिन सरना का, और वो दोनों अपने अपने ट्रैक्स के बारे में कुछ बता रहे होते कि यार ऐसा हुआ, ये मैंने इसलिए किया, मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है. पता नहीं, मतलब मुझे वो भी डिस्कनेक्ट थोड़ा सा लगा. एंड आई थिंक दिस न्यू थिंग दैट आई नोटिस्ड, दिस बैक एंड फोर्थ वाला थिंग ना, व्हिच स्टार्टेड आई थिंक व्हेन वी आल्सो वॉच्ड टेस्ट, उसमें भी सेम चीज थी, वेयर दे गो टू द मेन इंसिडेंट, देन दे कम बैक, देन अगेन दे गो, देन अगेन दे कम बैक. मतलब इज इट लाइक अ न्यू थिंग? Yeah, I mean, is it like a new thing now? I mean, I don't know. That is something that I noticed. It's a pretty old concept. It's just that अभी इंडिया में मेरे ख्याल से they don't know how to deal with it. It's a pretty old concept in Hollywood. पर अभी यहाँ पे they don't know how to deal with it. उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है. They've used it really well in shows like Sacred Games, but यहाँ पे they're trying to go into that zone and follow the non-linear narrative, but it's not really working out too well for them, and just to complicate the thing and ताकि वो और ज़्यादा complicated और ऐसा लगे they're using it, but it's not really. मतलब I think they basically trying to build the thriller factor here कि this is the main event that happened, oh my god, what is this, and then you go back to the character history कि क्या है, कौन है, हाँ, and then all of that, and then again you come back to the present day, then past, then present. तो ये चीज मुझे at least for me did not work for me as far as this show was concerned. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे tracks like I've been mentioning बहुत unnecessary थे, वो सब चीजों को avoid किया जा सकता था. So I think that's pretty much that did not work for me as far as Dark 7 White was concerned. Let's just quickly share our last thoughts. Would you be recommending it? I mean, I shouldn't be asking this question considering all the amazing things that you have to say. But would you recommend it, Soumya? One more thing, you mentioned, I always forget the name of this show for some reason. Also, maybe because they didn't actually implement it. I mean, if you see the poster, it's Dark 7 White. There must be something. I mean, characters का वो dark white दिखा रहे थे, but वो chessboard पे ऐसे था.
So I thought कहीं पे use होगा, कहीं कुछ mention होगा, एक जगह बहुत एक passing सा mention था, but that also didn't implement itself very well. So वो चीज है. Plus हाँ, so the last thoughts, and would I be recommending it to anyone? No, not at all. But if you guys need a few laughs, to see something how bad it is, I know it takes a lot of effort to make a show, but I'm sorry, I can't help it. But just like if you guys need a few laughs, and you want to entertain yourself with something light, and that doesn't require a lot of your attention and mind space, so I think you should go for this show in that case only. Abhijit, what are your last thoughts? देखिए, रिकमेंडेशन की जहां तक बात है, हो सकता है कि ये शो मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन ये शो के कई यूजर्स हो सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है ये शो कई जगह काम आ सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई मेहमान आ गया अनचाहा, आप उसको ये शो दिखा सकते हो, चले जाएगा 5 मिनट बिना चाय पिए. जैसे आप कोई मकान मालिक हैं, ठीक है, आपका किराएदार मकान नहीं खाली कर रहा है, तो आप उसके टाटा स्काई में सिर्फ या उसके डिजिटल टीवी में सिर्फ यही एक शो चला सकते हैं, तो वो मकान छोड़ के चले जाएगा, गारंटीड है. जैसे ये शो हॉस्पिटल्स में दिखा सकते हैं, एम्स वगैरह में, अगर उनके पास एनेस्थीसिया नहीं है और पेशेंट बेहोश नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी शो दिखा सकते हो, बेहोश हो जाएगा तो सर्जरी हो सकती है. तो इस शो के फायदे बड़े हैं. मैं नहीं कहूंगा कि ये शो बिल्कुल यूजलेस है, ये शो इतना भी यूजलेस नहीं है, पर ये शो मैं हर उस व्यक्ति को रिकमेंड करूंगा जिससे मेरी नहीं बन रही है आजकल, या जिससे मेरी लड़ाई हो रखी है, तो उसको आप ये शो रिकमेंड कर सकते हैं. तो ये शो मैं ऐसे लोगों को और ऐसी जगह पे रिकमेंड करना चाहूंगा. पर इस शो की सबसे बड़ी खास बात ये है कि this show makes CID look like Game of Thrones, and Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. This show makes Tarak Mehta Ka Ulta Chashma look like Breaking Bad. तो अगर आपको जरा सा भी वैलिडेशन चाहिए कि भाई अगर आपको जब कभी भी टीवी से आपका मन ऐसे उछट रहा हो, तो आप इस शो को देखें. या जब भी आपकी जिंदगी ऐसे बहुत बर्बाद चल रही हो और आपको लग रहा हो कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो आप ये शो देख सकते हैं. तो आप बोल सकते हैं कि भाई इतनी बुरी भी नहीं चल रही है. तो उसके लिए, उन सब चीजों के लिए ये शो मैं रिकमेंड जरूर करना चाहूंगा. सो यही. अभिजीत ने हमें काफी यूजफुल पॉइंट्स बताए हैं कि हमें ये शो क्यों और किन सिचुएशंस में देखना चाहिए. सो आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि उसने इस शो में से कुछ एक यूजफुल चीज निकाली हमारे लिए. सो थैंक यू अभिजीत, आई रियली अप्रिशिएट दैट. बट आई थिंक वी वॉच्ड Dark Seven White so that you possibly don't have to. Everybody who's watching this review. It was, I mean, my last thoughts would also sort of be similar to what Abhijit and Soumya shared. Initially, I did feel a lot of things were going to, make sense and all of that. Gradually, it just kept falling down the hill for me. So I would genuinely not, I don't think I would recommend it, क्योंकि बहुत सारे shows हैं. Can be, हाँ श्वेता. बहुत बहुत सारे shows हैं, बहुत सारी फिल्म्स हैं. The OTT platforms that we have today, particularly at this time, is just full of amazing content out there. So I would possibly request you to just invest your time in something else, or just go to sleep. I mean, that's the best thing. But I think you could possibly skip this one show because of all the reasons that we've been mentioning and talking about. So I think that's it for this particular episode of the Shosha podcast. I hope you liked the review. Please share with us what you have to say about the review and the show if you've still seen it. इतने रिव्यू देखने के बाद भी अगर आपने हमारे रिव्यू देखने के बाद भी शो देखा, तो प्लीज हमें बताएं if you agree with us, if you don't agree with us, and if there's any other film or series that you would want us to sort of review, we would love to do that for you. And don't forget to like, comment, share, and subscribe to Shosha. We meet until next time. Thank you so much.